Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. And Anti-Jharkhand Congress National President Mallikarjun Kharge said that during the recent discussions, people shared their concerns and the party explained its key programs. He emphasized that the dialogue focused on the caste census provisions under Article 15(5) for reservation in private institutions and deliberations around the removal of 50% reservation cap. उन्होंने सारी चीजें बताई। एक 10-15 मिनट बात करें, फिर ये हमको समझाया अपने कार्यक्रम क्या है, खास करके जातीय जनगणना और उसके बाद कलम 15(5) इसको जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसकी बात हो गई। 50% क्या निकालने की बात होगी। ये सारी चीजें हमने उनको समझा दी है और उस पर काम करने के लिए उनको कहा। प्रेसिडेंट की बात सुनी और प्रेसिडेंट की बात सुनी। उन्होंने सारी चीजें बताई। एक 10-15 मिनट बात करें, फिर ये हमको समझाया अपने कार्यक्रम क्या है, खास करके जातीय जनगणना और उसके बाद कलम 15(5) इसको जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसकी बात हो गई। 50% क्या निकालने की बात होगी। ये सारी चीजें हमने उनको समझा दी है और उस पर काम करने के लिए उनको कहा। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the state government is consistently working to strengthen the health sector. He stated that significant infrastructure is being developed with efforts underway to construct new hospitals, modernize existing government hospitals and enhance their capacity. राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। नए अस्पतालों का निर्माण करने के साथ ही सरकारी अस्पतालों को आधुनिक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने पर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज खुले, उसके लक्ष्य को लेकर भी हम नए नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य भी करवा रहे हैं और नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण होने से प्रदेश में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, उसके साथ ही अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सक तैयार करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। नए नए हमको डॉक्टर मिलेंगे, नए नए अन्य जो मेडिकल स्टाफ है वो प्राप्त होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के BJP leader C.R. Keshwan reportedly accused Congress chief Mallikarjun Kharge of making treacherous statements comparing him to a modern-day Mir Jafar. He described Kharge's comments against the Prime Minister as toxic, baseless and unfounded, calling them deplorable and unpardonable. Keshwan stated that the remarks were indefensible and demanded an unconditional apology from Kharge. He also urged Kharge to disclose the nature of the inputs that lead him to make such serious allegations. Today has made treacherous statements similar to a modern day Mir Jafar, and his toxic, baseless, unfounded rant against Honorable Prime Minister is most deplorable and condemnable, and Mr. Kharge's remarks are unpardonable, indefensible and cannot be forgiven. The whole nation is appalled at the way in which the Congress President has made these preposterous remarks, and everybody demands an unconditional apology from Mr. Kharge, and he should also come clean on what kind of inputs he's received to make such outrageous remarks. While the Congress leaders have been, consistently, if you've seen, trying to lower the morale and attack our valiant armed forces, they have also insulted the integrity of the mourning families. While all this happens, Rahul Gandhi
maintains a calculated silence. He never says anything. And today, after Mr. Kargeji's, toxic rant, what has Rahul Gandhi got to say? Is he not going to condemn these outrageous remarks of, Mallikarjun Kharge on the Prime Minister? Or he cannot control anybody. The question is, one is wondering now whether Rahul Gandhi is indulging in hate ventriloquism, and is he firing on the shoulders of Congress leaders and today the Congress president? Otherwise, he would condemn and take action against these people and control them. So Rahul Gandhi and the Congress party owes an explanation before the country and an unconditional apology. We have seen how the Congress party has become a content creator for Pakistan, and the nauseating remarks of Mr. Ajay Rai were played in Pakistan media. And, they were mocking at our valiant armed forces. During this time, at such a critical juncture for the nation, the Congress party has stooped to the nether, it stooped to an abyss. And I think the behavior and the conduct of the Congress party, when history looks back, will never be forgiven by our people. Today, for these preposterous statements made by Mr. Mallikarjun Kharge, he has to come clean on what is the basis of these remarks, and he needs to apologize. And I think Sonia Gandhi and Rahul Gandhi should ensure that the Congress president apologizes not just to the Prime Minister but to the entire country, which are meant to harm our nation. Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut reportedly stated that the Supreme Court has ordered that local body elections in Maharashtra must be conducted within 4 months. He mentioned that the party has been repeatedly demanding this and expressed concerns about the elections taking place during the rainy and festive seasons. Despite this, he assured that they are prepared to handle all types of situations. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि लोकल बॉडीज का चुनाव 4 महीने में आप लीजिए नोटिफिकेशन निकालो। जब हम बार बार ये बोल रहे थे कि लोकल बॉडीज का चुनाव होना जरूरी है, लोकल बॉडीज में ही लोगों का ज़्यादा संपर्क और काम रहता है, शहरों का काम होता है, गांव का काम होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 4 महीने के बाद चुनाव करिए। बारिश का दिन है, पूरे महाराष्ट्र में तो माहौल होता है, पूरा बारिश और त्योहार का माहौल होता है, त्योहार का भी माहौल होता है। अब चुनाव उसमें हो रहा है, लेकिन हम तैयारी है, हमारी युद्ध सराव हमारा हो गया है, पहले से चल रहा है, और हम सभी परिस्थितियों से सामना करके इस चुनाव के साथ जो तारीख आई है उनके साथ हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि लोकल बॉडीज का चुनाव। Samajwadi Party President Akhilesh Yadav reportedly stated that he learned about the encounter of one Aman Yadav in Agra and immediately concluded it was a fake encounter. He put the claimer that a party worker from Agra informed him that the government had released the wrong name of the person involved in the encounter. सुबह ही सुबह 6:15 के बाद एक खबर आई कि आगरा में अमन यादव का इनकाउंटर कर दिया गया। जैसे ही मैं उठा और कुछ देर बाद वो फ्लैश होना शुरू हो गई न्यूज, तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि ये असली इनकाउंटर नहीं है, ये फेक इनकाउंटर है। तभी देखा मैंने कि आगरा से कार्यकर्ता का फोन आ रहा है। मैंने फोन उठा लिया तो जानकारी हुई कि सरकार के लोगों ने उसका गलत नाम चलवाया है। जो सरकार इनकाउंटर कर रही हो और उसका असली पूरा नाम न जानती हो, तो बताओ फेक इनकाउंटर है कि नहीं है? जो सरकार असली पूरा नाम भी नहीं जानती है, ये जाति विशेष खासकर हम सबको और खासकर समाजवादियों को, क्योंकि जैसा हमारे किसान भाई कह रहे थे, उन्हें पीड़ा है, जिसको पीड़ा है, तकलीफ है, उसके साथ पीडीए है।
पीडी है उनके साथ, जाति विशेष को बदनाम करने के लिए इन्होंने नाम जानबूझ करके चलवाया। जब मैंने वहां के लोकल पत्रकार साथियों से पूछवाया कि आखिरकार ये नाम क्यों लिखा गया, क्यों फ्लैश किया गया, तो उन्होंने कहा कि पुलिस के हैंडल पे ट्वीट किया गया था या मैसेज गया था। मैंने तत्काल उससे कहा कि उस मैसेज की स्क्रीनशॉट मांगिए, तो उसके बाद उसने स्वीकार किया प्रेस के लोगों कि उसे मौखिक बताया गया था। पुलिस के किसी बड़े अधिकारी ने उसे ब्रीफ किया था पत्रकारों को। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है, जिसका असली नाम भी नहीं सरकार जानती है, पूरा नाम, ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करना चाहिए। सुबह ही सुबह 6:15 के बाद एक खबर आई कि आगरा में अमन यादव का इनकाउंटर कर दिया गया। जैसे ही मैं उठा और कुछ देर बाद वो फ्लैश होना शुरू हो गई न्यूज, तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि ये असली इनकाउंटर नहीं है, ये फेक इनकाउंटर है। तभी देखा मैंने कि आगरा से कार्यकर्ता का फोन आ रहा है। मैंने फोन उठा लिया तो जानकारी हुई कि सरकार के लोगों ने उसका गलत नाम चलवाया है। जो सरकार इनकाउंटर कर रही हो और उसका असली पूरा नाम न जानती हो, तो बताओ फेक इनकाउंटर है कि नहीं है? जो सरकार असली पूरा नाम भी नहीं जानती है, ये जाति विशेष, खासकर हम सबको और खासकर समाजवादियों को, क्योंकि जैसा हमारे किसान भाई कह रहे थे, उन्हें पीड़ा है, जिसको पीड़ा है, तकलीफ है, उसके साथ पीडीए है। पीडीए है उनके साथ, जाति विशेष को बदनाम करने के लिए इन्होंने नाम जानबूझ करके चलवाया। जब मैंने वहां के लोकल पत्रकार साथियों से पूछवाया कि आखिरकार ये नाम क्यों लिखा गया, क्यों फ्लैश किया गया, तो उन्होंने कहा कि पुलिस के हैंडल पे ट्वीट किया गया था या मैसेज गया था। मैंने तत्काल उससे कहा कि उस मैसेज की स्क्रीनशॉट मांगिए, तो उसके बाद उसने स्वीकार किया प्रेस के लोगों कि उसे मौखिक बताया गया था। पुलिस के किसी बड़े अधिकारी ने उसे ब्रीफ किया था पत्रकारों को। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है, जिसका असली नाम भी नहीं सरकार जानती है, पूरा नाम। Speaking on the recent Pahalgam terror attack, former Prime Minister and JD's chief H.D. Deve Gowda condemned the incident, calling it a masterminded attack. He expressed full support for Prime Minister Narendra Modi's decisions and its aftermath, including the cancellation of his scheduled visit to Russia. Deve Gowda also stated that both he and H.D. Kumaraswamy stand firmly with the Prime Minister and welcome to the move to grant the army full freedom to take necessary action in response to the attack. By attacking the tourists, I think this is the first time the tourist was massacred in Kashmir. This is a masterminded attack. 28 people have lost their life. 2 foreigners.
I have already made it clear, including Kumaraswamy, our party is going to stand with the stand taken by the Prime Minister. Prime Minister has cancelled even Russia program. He gave freedom to the army. Whatever steps you want, you take. That freedom, first time I was also the Prime Minister. I know the ground realities. I think first time the Prime campaign in Bhopal to inform citizens about the recently passed Waqf Bill 2025. During his address, he emphasized that the legislation aims to ensure transparent, equitable and accountable management of Waqf properties, benefiting the needy and deprived members of the Muslim community. Dr. Yadav congratulated Union Home Minister Amit Shah and Minority Affairs Minister Kiren Rijiju for their bold, visionary and unprecedented decision in advancing the bill. He also highlighted that the bill would promote digitalization, curb financial irregularities and increase the revenue of state Waqf boards, thereby empowering Muslim women and the entire society. सही है कि वक्फ सुधार की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं वक्फ के माध्यम से अपने समाज के लिए ये जो अंतर आया है इसको समझना चाहता हूँ, देखना भी चाहता हूँ। एक तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे बीच में से हमारे ही लोग कई प्रकार से साधन संपन्न हो गए, राजनीति में चले गए, बड़ी ताकतवर हो गए। तो बड़े ताकतवर होने के बाद वो एक कहावत है ना, बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न लगे पल लगे अति दूर। बड़े हो गए भाई, बड़े मान लिया तो हमने कहा मना करा तुम बड़े हो जाओ, लेकिन ऐसे बड़े मत रहो कि नीचे वालों को बिल्कुल कुचल दो, उनकी चिंता नहीं करो, उनके बारे में सोचो नहीं। और आप नहीं सोचोगे तो तकलीफ कौन पाएगा? आज नहीं तो कल मवाद अगर हुआ है, घाव हुआ है, अगर उसका इलाज नहीं करोगे तो इलाज के अभाव में वो शरीर तो सड़ेगा, उसकी आगे जाके परिणति जो आएगी वो बहुत खराब आएगी। मैं आज इस अवसर पर इसलिए इसको जवाबदारी से कह सकता हूं, हम कभी कभी, लेकिन अभी अब दिख रहा है, मुझे तो इस बात का आनंद आया है, कितना बदलाव आ गया। आपने देखा होगा तो समय के साथ हमारे लिए सरकार में रह करके सरकार के आधार पर एक एक काम, एक एक चीज, एक एक विषय माननीय मोदी जी ने दुनिया के सामने जब रखा है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता के सर्वाधिक रूप से उनका सम्मान अगर कहीं हुआ तो अरब राष्ट्रों में, वह अरब देशों ने उनका सम्मान करके बताया। सही है कि वक्फ सुधार की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं वक्फ के माध्यम से अपने समाज के लिए ये जो अंतर आया है इसको समझना चाहता हूँ, देखना भी चाहता हूँ। एक तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे बीच में से हमारे ही लोग कई प्रकार से साधन संपन्न हो गए, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has called for a careful and measured response in the wake of the Pahalgam terror attack.
Acknowledging the gravity of the situation, he emphasized that violent action must be taken to apprehend those responsible. It is equally important to ensure that innocent people of Jammu and Kashmir are not adversely affected. Abdullah stated that this concern has been formally conveyed to the relevant authorities, highlighting the need for a balanced and human approach. सबको मालूम है, टाइम लगेगा। हालात अब जो हैं उनसे हम मतलब ना इनकार कर सकते हैं, ना हम उनके उनके तय अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि कहीं पहलगाम के मामले में जो कसूरवार हैं उनको पकड़ते पकड़ते बेगुनाह लोग जो हैं इसकी लपेट में ना आए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ लोगों को पकड़ने के लिए हम तमाम जम्मू कश्मीर और तमाम कश्मीर के लोगों को जो है पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा खबरदार रहना और इसमें समझदारी से कदम उठाना, इसके बारे में जहां तक हो सके हमने बातें अपनी पहुंचा दी हैं। इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर तो अब हम सबको मालूम है, टाइम लगेगा। हालात अब जो हैं उनसे हम Indian Army soldier Amit Sangwan, a native of Sarangpur village, tragically lost his life in a road accident in Jammu and Kashmir. The news has cast a pall of gloom over the entire village, with locals describing an overwhelming sense of grief. No store has been lit. The whole village is mourning, residents said. Amit Shah, the only son of his family, and had already lost his father. His untimely death has left the family and the community devastated as villagers gather to pay their respects to the brave soldier. 4 तारीख को ये 11:30 बजे जम्मू से आते हुए पठानकोट की तरफ राम बाग में उनके नियंत्रण खो देने से उनका वो साधन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उससे पूरे गांव में शोक का माहौल है। वो कल से गांव के जब पता चली है गांव में कहीं पर भी कोई चूल्हा वगैरह नहीं जला है और सभी को बहुत दुख है इस बात का। और ये एक परिवार का इकलौता लड़का था और बहन के पिताजी भी पहले एक्सपायर हो चुके हैं। काफिले से इनकी वो शव यात्रा के है वो अभी पहुंचने वाली है कुछ ही समय में। रास्ते में पहली से लेकर 10वीं तक मेरा स्कूल में पढ़ाया है। हमारे गांव का था, अमित कुमार था, राजेश कुमार इसके पिताजी का नाम था और इसके माता जी का नाम कृष्णा देवी, जो इसकी माता जी हमारे स्कूल में मैडम भी रही है। बहुत शरीफ लड़का था और ये जम्मू कश्मीर में एक दुर्घटना का शिकार होकर मतलब वीरगति को प्राप्त हो गए। हमें बड़ा दुख है और दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देना चाहते हैं। गांव में ये पहला केस है हमारा। कोई जैसे ही यह सूचना मिली तो दुख का एक पहाड़ पूरे गांव के ऊपर टूट पड़ा और जितने भी गांव में छोटे से लेकर बड़े तक सभी को बहुत दुख है। कल से खाना नहीं खाया पूरे गाँव ने। 4 तारीख को ये 11:30 बजे जम्मू से आते हुए पठानकोट की तरफ राम बाग में उनके नियंत्रण खो देने से उनका वो साधन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उससे पूरे गांव में शोक का माहौल है। वो कल से गांव के जब पता चली है गांव में कहीं पर भी कोई चूल्हा वगैरह नहीं जला है और सभी को बहुत दुख है इस बात का। और ये एक परिवार का इकलौता लड़का था और बहन के पिताजी भी पहले एक्सपायर हो चुके हैं। काफिले से इनकी वो शव यात्रा के है वो अभी पहुंचने वाली है कुछ ही समय में। रास्ते में पहली से लेकर 10वीं तक मेरा स्कूल में पढ़ाया है। हमारे गांव का था, अमित कुमार था, राजेश कुमार इसके पिताजी का नाम था और इसके माता जी का नाम कृष्णा देवी, जो इसकी माता जी हमारे स्कूल में मैडम भी रही है। बहुत शरीफ लड़का था और ये जम्मू कश्मीर में एक दुर्घटना का शिकार होकर मतलब वीरगति को प्राप्त हो गए। हमें बड़ा दुख है और दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना देना चाहते हैं। गांव में ये पहला केस है हमारा। कोई जैसे ही यह सूचना मिली तो दुख का एक पहाड़ पूरे गांव के ऊपर टूट पड़ा और
जितने भी गांव में छोटे से लेकर बड़े तक सभी को बहुत दुख है। कल से खाना नहीं खाया पूरे गांव ने। 4 तारीख को ये 11:30 बजे जम्मू से आते हुए In Karnaul, Haryana Congress MP Deepinder Singh Hooda said that Rahul Gandhi visited the family of Vinay Narwal to offer his condolences and support. He stated that the sole purpose of the visit was to pay tribute to Vinay Narwal and stand in solidarity with the grieving family. मीडिया का विषय नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे इतनी बड़ी शहादत देश के लिए जो दी तो परिवार के दिलों में कितना दर्द होगा वो आप समझ सकते हैं। तो ये एक पारिवारिक बातचीत रही है और एक तरीके से उन्होंने परिवार से मिलकर उनका ढांढस बधाने का कार्य किया। आज कोई इस विषय में राहुल जी का या हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हम राजनीतिक टिप्पणी करें। आज आने का जो उद्देश्य था वो शहीद विनय नरवाल जी को श्रद्धांजलि देना और परिजनों से एकांत में मिलकर एक पारिवारिक रूप से ढांढस बांधना। देखिए वो सारी बात उनकी ये कोई मीडिया का विषय नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे इतनी बड़ी शहादत देश के लिए जो दी तो परिवार के दिलों में कितना दर्द होगा वो आप समझ सकते हैं। तो ये एक पारिवारिक बातचीत रही है और एक तरीके से उन्होंने परिवार से मिलकर उनका ढांढस बधाने का कार्य किया। आज कोई इस विषय में राहुल जी का या हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हम राजनीतिक टिप्पणी करें। आज That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CBR English News.